السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہادیہ مغل کا ناول تہمت تمہارے عشق کی، یہ ایپیسوڈ 4 ہے۔ چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ سینٹرل جیل میں داخل ہو کر اس نے اپنے اندر بڑھتے اشتعال کو بمشکل قابو کیا۔ کچھ جیلر جو چیئر پر بیٹھے نیند کے مزے لے رہے تھے، ایس پی وحاش کو دیکھ کر ہڑبڑا کے سر کئی جیلر کے بکھلائے سلوٹ کو نظر انداز کیے وہ تیز قدموں سے نوفل یزدان کی جیل کی جانب بڑھا۔ وہ بینچ پر مزے سے لیٹا ہوا تھا۔ وحاش کا دل تو چاہا کہ اندر داخل ہو کر اس کی شکل بگاڑ کر رکھ دے۔ وہ آگ اگلتی نگاہوں سے اس کا توانا وجود گھور رہا تھا۔ ویسے داد دینی پڑے گی وحاش سلطان کہ تم عقاب کی سی نگاہ رکھتے ہو۔ نوفل یزدان نے چہرے پر سے بازو ہٹائے دل جلا دینے والی مسکراہٹ اس پر اچھالی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ تمہاری ہمت کیسی میرے گھر میں داخل ہونے کی اور وہ فائلز چرانے کی؟ وحاش دبا دبا گرایا۔ ابے یار، انسانوں کا خون ہے، کاہے کو پی کر اپنا ٹیسٹ خراب کرے گا؟ ایسا کر فریش جوس پی تاکہ اندر بھڑکتا لاوا جو کہ صرف میرے لیے تھوڑا کم ہو۔ نوفل کا جواب اس سے سوئی کی مانند وجود میں چبھتا محسوس ہوا۔ بکواس بند کرو، میری فائلز دو۔ میں تم جیسے خونی درندے کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ وحاش نے حد درجہ اپنا لہجہ دھیما رکھا، لیکن نوفل یزدان کو اس کے دھیمے لہجے کی عادت نہیں تھی۔ میرے منہ تو کبھی لگے کبھی نہیں۔ نوفل آنکھ دبائے پراسراریت سے بولتا آگے آیا تو وحاش نے حیرانی سے اسے دیکھا، لیکن جب اس کی بات کا مطلب سمجھ آیا دل چاہا ایک مکہ اس کے منہ پر جھاڑ دے۔ سمجھ گیا نا، میں جانتا تھا تو سمجھ جائے گا، پولیس والے پورے ٹھرکی ہوتے ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے بے باک کہکا لگائی وحاش کا خون مزید کھولا رہا تھا۔ وحاش نے تیز سے اس کا گریبان جکڑا۔ پل بھر میں نوفل یزدان کی آنکھوں میں لال ڈورے نمایاں ہوئے، جبکہ چہرہ لہو چھلکنے لگا۔ پوری طاقت سے اس نے وحاش سے اپنا گریبان چھڑا کر اسے پوری طاقت سے دور دھکیلا۔ وہ چند قدم پیچھے ہوا۔ میرا گریبان پکڑنے سے پہلے اس کزن کا پکڑ جو تیری بہن کی زندگی کل برباد کرنے والا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وحاش کی حیرانگی بجا تھی۔ وہی جو سچ ہے، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، تعبیر صرف اور صرف میری ہے۔ اگر اس پر کسی نے غلط نگاہ ڈالنے کی اس کی آنکھوں کو میں اب خود اپنے ہاتھوں سے نوچوں گا، اور اگر کسی نے اس کی زبردستی شادی کروانی چاہی تو نوفل یزدان خون کی ندیاں بہا دے گا۔ اگر میں 5 قتل بنا ڈرے دیدہ دلیری کے ساتھ کر سکتا ہوں تو پھر مزید قتل کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ میری امانت ہے، صرف اور صرف میری، یاد رکھنا۔ اس کے لبوں سے چھلکتی جنونی شدت پسندی وحاش کو بھی ساکت کر گئی تھی۔ تمہیں میں دیکھ لوں گا، اس وقت میرے لیے تعبیر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کسے دیکھے گا، نوفل نے دوبدو جواب دیا تھا۔ وحاش تیز سے وہاں سے جانے لگا۔ اگلی ملاقات کرنی ہو تو میرے مینشن اجازت نامہ لے کر آنا۔ تمہاری بہن کے لیے مینشن دوبارہ سیٹ کروا رہا ہوں، اسے میں اپنے ساتھ جیل میں رکھ تو نہیں نہ سکتا۔ اندر بڑھتے شعلوں جیسے غصے کو قابو کیے وہ وحاش کو جھلسا چکا تھا۔ اور تمہارا یہ خواب میں کبھی پورا ہونے نہیں دوں گا۔ وحاش کے بھڑکے ہوئے انداز پر بے باک کہکا لگانا نہیں بھولا تھا۔ وہ صبح ہوتے ہی یہاں پہنچا تھا۔ حویلی میں ہوتی چہل پہل پر اس کا خون کھولا۔ وہ سیدھا اوپر تعبیر کے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ وسیع اور عریض لاؤنج میں بیٹھے کمال ملک وحاش کو دیکھ کر گھبرائے تھے، لیکن وہ انہیں ایک سرخ نگاہ سے دیکھتا اوپر بڑھا۔ وحاش رکو! کمال ملک اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور پوری دہشت سے بولے۔ لیکن وحاش نہیں رکا تھا۔ جاؤ نجمہ، اپنے بیٹے کو سنبھالو۔ اگر آج یہ نکاح نہیں ہوا تو تم بہتر جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ نجمہ بیگم کا دل جہاں بیٹے کو دیکھ کر تھوڑا پرسکون ہوا تھا، شوہر کی دھمکی پر گویا کسی نے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ گرتی پڑتی اوپر بھاگی۔ وحاش سیدھا تعبیر کے کمرے میں گیا، جہاں بیٹھی وہ رونے کا شغل پورا کر رہی تھی۔ بھائی! فاق ہوتے چہرے کے ساتھ وہ سرامگی سے اس کا نام لیے بولی، جبکہ وحاش کے چہرے پر پتھریلے تاثرات سجے تھے۔ تم نے مجھے اتنا پرایا سمجھ لیا کہ مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا، اور ان سب کے ظلم و ستم پر سر جھکا دیا۔ تم اتنی کمزور تھی۔ وحاش کی دھاڑ نیچے تک گئی تھی اور کمال ملک کا تیش ابھر آ رہا تھا۔ بھائی! وہ بھیگی متورم آنکھیں اور سرخ ہوتے لبوں سے بولی۔ تعبیر، تم نے آج مجھے جتا دیا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تم نے بتا دیا کہ تمہارا بھائی ایک کمزور اور بزدل مرد ہے۔ وہ تعصب سے سر ہلائے بولا۔ بھائی میری بات سنیں۔ تعبیر اس کی جانب بڑھی، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتا لمبے ڈھک پڑتا دوبارہ نیچے بڑھا۔ کس کی مرضی سے آپ نے تعبیر کا نکاح کرنا چاہتا؟ بولیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ ایک بالغ لڑکی ہے اور زبردستی نکاح کی کیا سزا ہوتی ہے؟ اس بارے میں آپ کو پتہ ہوگا۔ وحاش کا لہجہ مضبوط تھا۔ تم ہمیں قانون مت سکھاؤ وحاش سلطان، یہ قانونیت تم اپنے مجرموں پر آزماؤ۔ کمال ملک شفقت سے بولے۔ بیٹا ہونے کا حق میں کافی عرصہ پہلے کھو چکا ہوں، لیکن اپنی نفرت میں
بیٹی کی زندگی کیوں تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ جسے تعبیر کیا ہے نکاح کا فیصلہ کیے ہو اس کی عمر تو دیکھ لیتے، لیکن خیر آپ کی تو اپنے بھائیوں کے معاملے میں آنکھیں بند ہیں۔ وہ آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر زیادہ عزیز ہے۔ وہ تمسخرانہ مسکرایا۔ اپنی ہاتھ میں رہو، اب میں مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ سلمان مکمل رضامندی سے تعبیر کو اپنا رہا ہے۔ ہاں، سمینہ بھابھی کا حق مار کر ان کو چھوڑ کر وہ تعبیر کو اپنا رہا ہے۔ کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ وحاش وہ دھاڑے تھے۔ مالک وہ بڑے ملک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انہیں بڑے اسپتال شہر لے جایا گیا۔ ملازم کی روح فرسا خبر نے دونوں کو مڑنے پر مجبور کیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کمال ملک کو یقین کرنا مشکل ہے گا، جبکہ وحاش کے ذہن میں نوفل کے الفاظ گونجے، یعنی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ کمال ملک اپنی چادر سنبھالے تیزی سے باہر نکلے تھے، جبکہ سیڑھیوں کے قریب کھڑی تعبیر اپنی قسمت کو کوستی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ رات کی قہرناکی ختم ہوئی تو دن کی روشنی نے چاروں طرف اپنی تابناکی بکھیری۔ اپنے مینشن میں کھڑا وہ ماضی کے دھندلکوں میں کھویا ہوا تھا۔ جہاں اس مینشن نے اچھی یادیں، محبت بھرے لمحے دیے تھے، وہیں اسی مینشن سے اسے ایک وقت میں وحشت بھی ہوئی تھی۔ لیکن یہاں آنے کی دو وجوہات تھی۔ ارادہ تو اس کا کچھ دن بعد شفٹ ہونے کا تھا، لیکن کچھ کام جلد ہونے کے منتظر تھے، اور آج وہ اسی کام کی تکمیل کے لیے یہاں آیا تھا۔ فون کی اسکرین پہ چمکتا باسط کا نمبر اسے احساس دلا گیا تھا کہ کام ہو چکا ہے۔ باس، ہاں باسط بیٹا بول، کوئی خوشی کی خبر سنانا ورنہ تیرا باس آج تجھے چھوڑے گا نہیں۔ فون کان سے لگائی وہ لاؤنج میں چکر کاٹتا بولا، باس کبھی تو پیار سے بات کیا کرو۔ باسط نے منہ پکاڑا، خبر سنا باسط، بس کام ہو گیا۔ وہ سلمان ملک شیروانی پہنے بڑے شوق سے سیلون پر بڑھاپے کے آثار چھپانے جا رہا تھا، پر بیچارہ سیدھا پانی لگے کھیتوں میں گرا۔ ہاں، ٹانگ بازو تو ٹوٹ ووٹ گئی ہوگی، شہر لے جایا گیا ہے، اب دیکھو کب ریپیئر ہوتا ہے۔ شاباش باسط، مجھے یقین تھا کہ تو میرا کام ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ دل خوش کر دیا میرے شیر، تو انعام کا حقدار ہے۔ شکریہ باس، باسط چہکا تھا۔ خیر اب تو نے سیدھا میرے مینشن آنا ہے۔ مینشن کیوں باس؟ اور آپ کا وہاں شفٹ ہوئے؟ وہ حیران ہوا۔ یہاں آئے گا تو بتاؤں گا، فی الحال یہاں بھی ایک کام تیرا منتظر ہے، ہو سکتا ہے یہ کام تجھے پسند بھی آئے۔ خیریت ہے باس؟ باسط سیدھا فلیٹ جانا چاہتا تھا، جہاں وہ بے وقوف سی اپسرا اس کا دل چرا بیٹھی تھی، جس کی دوسری جھلک دیکھنے کے لیے وہ کل سے پاگل ہو رہا تھا۔ یہاں آئے گا تو سب پتہ چل جائے گا۔ اوکے باس، شام تک آتا ہوں۔ کیوں بھائی، کس خوشی میں؟ نوفل نے برج گئی۔ وہ باس ایک ضروری کام تھا، شام تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ بخلایا تھا، شام نہیں ہونی چاہیے، اور ضروری کام کی تفصیل ذرا اپنے باس کو آ کر گوشگوار کرنا۔ باس، نوفل نے کال کاٹ دی تھی، دوسرے کمرے کی جانب بڑھتا وہ موبائل پر کچھ ٹائپ بھی کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ بیڈ پہ لیٹی ہوئی چھوٹی سی لڑکی نوفل کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ اس کی تصویر لے کر اسی نمبر پہ بھیجی جس پر وہ کچھ دیر پہلے میسج سینڈ کر رہا تھا۔ دوسری جانب شخص کا دل بے قرار ہوا، لیکن یہ اطمینان تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وحاش کی سنگ دلی اور بے رخی بھرے رویے کو سوچتی وہ کل سے اداس تھی۔ تبسم بیگم نے بھی اس کا اداس بھرا انداز نوٹ کیا، لیکن کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹی کے سر پر کرش کا بھوت سوار ہے، وہ چند دن تک رہنے والا ہے، لیکن انابیہ کو ہر نئی چیز پر کرش محسوس ہوتا تھا، اور یہ بھوت پھر اسے بہتر چیز کو دیکھ کر ہی اترتا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ تبسم بیگم نے گاڑی اس کی یونیورسٹی کے آگے روک کر اس کی پیشانی چومے کہا۔ وہ مسکرا کر گاڑی سے اتری تھی۔ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو صنم ملک اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ انابیہ کو اندر آتے دیکھ کر اس کی دلی مراد بھر آئی۔ وہ تیزی انابیہ کے راستے میں آئی۔ ہیلو مس، میں صنم ہوں۔ وہ اچانک اس کے سامنے آئے ہاتھ بڑھائے بولی۔ انابیہ حیران ہوئی تھی، اس کی اجنبی نگاہوں کو وہ بھانپ چکی تھی۔ میں تمہارے ہی ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہوں۔ صنم نے بڑھے ہوئے ہاتھ کی جانب نگاہ کیے کہا تو اس نے بے دلی سے ہاتھ ملایا۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ صنم نے تمہید باندھی تو انابیہ نے سامنے موجود لڑکی کو دیکھا۔ جولیٹ کلاس کی ہی لگ رہی تھی۔ آپ اور میں پہلی بار ملی ہیں، انابیہ نے اسے جتایا۔ میں جانتی ہوں، لیکن بات تمہارے مطلب کی بھی ہو سکتی ہے، اور پہلی بار کا ملنا ہی دوستی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جی پوچھیں۔ تم وحاش سلطان کو کیسے جانتے ہو؟ صنم کے سوال پر انابیہ نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں عام تاثرات تھے۔ میں بھی تو آپ سے یہ سوال کر سکتی ہوں کہ آپ وحاش سلطان کو کیسے جانتی ہیں اور مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اور اب میں اتنی دوستی یا بات چیت بھی نہیں ہوئی جو آپ ڈائریکٹ پرسنل سوال کر رہی ہیں۔ انابیہ کا مضبوط انداز صنم کو احساس دلا چکا تھا کہ وہ آسان چیز نہیں ہے۔ دوستی کا کیا ہے، وہ تو ہو جائے گی۔ صنم نے نرم مسکراہٹ کے سنگ وہی الفاظ دہرائے۔ خیر وہ بات کی بات ہے، لیکن میں کسی کو اپنی ذاتیات میں گھسنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ انابیہ وہاں سے جانے لگی تھی۔ میں کل ہی سمجھ گئی تھی کہ تم اسے پسند کرتی ہو۔ صنم نے ہوا میں تیر چلایا۔ انابیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اگر میں انہیں پسند بھی کرتی ہوں تو آپ کیوں میری لائف میں زبردستی گھس رہی ہیں؟
अनाबिया इस पर चिढ़ कर बोली, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट कज़न है और मुझे पसंद भी करता है। अनाबिया के दिल में गोया अचानक से कुछ टूटा। उसने ज़ख्मी होती निगाहों से सनम को देखा, जिसका चेहरा सच्चाई की मुंह बोलती तस्वीर था। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरी मोहब्बत कोई और है, इसलिए तुम परेशान मत हो। सना मुस्कुराई थी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं परेशान हूँ? नफ़ी में सर हिलाए वो तंसिया मुस्कुराई, लेकिन दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैं कल ही समझ चुकी थी कि तुम उसे पसंद करने लगी हो, क्योंकि जैसे तुम कल उसके पीछे गई थी, उसे देख रही थी, मुझे एहसास हो चुका था कि ये मोहब्बत का ही मामला है। सनम पुरयकीनी से बोली। आप गलत समझ रही हैं, मैं बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उन्होंने कुछ दिन पहले मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं कल उनके पीछे गई थी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अनाबी अपनी कैफियत छुपाई बोली थी, तुम मुझ पे एतबार कर सकती हो, क्योंकि मैं भी मोहब्बत में हारी हुई हूँ। सनम तल्खी से बोली। अनाबिया को वो लड़की थोड़ी दिल बर्दाश्त लगी। लेकिन मैं मोहब्बत में हारी नहीं हूँ, और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। अगर हारी भी तो किसी से भीख मांगने हरगिज़ नहीं जाऊँगी। मजबूत लहजे में बोलकर आगे बढ़ गई। सनम के नम तासरात कहरनाकी में बदले। उसने शोला भड़काती निगाह से नाबिया की पुश्त को घोरा। वहाज मलिक, तुम्हें बर्बाद करके रहूँगी। तुम्हारी वजह से मैंने अपने अहम रिश्ते खोए हैं, और तुम्हें बर्बाद किए बिना मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। और तुम्हारी बर्बादी की वजह ये अनाबिया नामी लड़की ही बनेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। ऐत भरे अंदाज में बोलती वो नाबिया को नगाह से ओझल हुए देखती रही। ब्लू शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहने वो परफ्यूम का छिड़काव करते गुनगुना रहा था। वो फास्ट स्पीड से गाड़ी ड्राइव करता फ्लैट में पहुंचा था। नौफिल का हुक्म वो कतई नहीं टाल सकता था, लेकिन दिल के हाथों भी मजबूर था। तभी इस लड़की को देखने दोबारा फ्लैट में आया था, लेकिन फ्लैट लॉक था। उसे मायूसी का सामना हुआ, लेकिन फिर अपनी उलझी हालत पर तवज्जो गई तो मुस्कुरा दिया। लड़की को इम्प्रेस करने से पहले मुझे खुद को इम्प्रेस करना चाहिए। बड़बड़ाता हुआ अंदर बढ़ा। काफ़ी देर शावर लेने के बाद वो निखरा सा बाहर आया था। अपने फ्लैट का दरवाज़ा वो पहले ही खोल चुका था कि अगर कोई आए तो कदमों की आहट सुन सके। दूसरे फ्लैट के लॉक खुलने की आवाज़ पर दिल धड़का था। चेहरे पर घबराहट भरे तासरात। आज पहली मर्तबा वो घबराया था। एक कातिल गुंडा आज एक लड़की से घबरा रहा था। उसे अपनी ही कैफियत पर हंसी आई। शर्ट के बटन बंद करके वो बाहर आया तो सुंदरी फ्लैट का लॉक खोल चुकी थी। उसकी पुश्त से थोड़े फासले पर खड़े होकर उसने गहरी निगाहों से उसे देखा। यखलक जहन में झमाका हुआ। बैक पॉकेट से मनी चाकू निकाले उसने। आगे बढ़कर उसके बैग की स्ट्रिप एक राजदारी से काटी कि उसे खबर भी ना हुई। वो जो अंदर बढ़ने वाली थी, बैग के ज़मीन पोस्ट होने पर हड़बड़ाई। ये कैसे? यखलक वो मोड़ी के सामने मौजूद शख्स से टकराए। करीब पलकों की बाढ़ उठाकर उसने सामने मर्दाना खुशबू बखेरते सरापे को देखा, जो पिछले हुलिये से खासा मुख्तलिफ था। सुंदरी उसे देख के नीचे झुकी तो वो भी झुका। यखलक दोनों की पेशानी टकराई। बासित ने जानबूझ के ये हरकत की थी, लेकिन सर इतनी जोर से टकराएगा उसे अंदाजा नहीं था। आउच! वो दर्द बर्दाश्त करती उठी। सॉरी, गलती मेरी थी। तुम नीचे झुकी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए झुक गया। बासत अपनी पेशानी पर उसका लम्स महसूस किए गंभीरता से बोला। तुम? सुंदरी ने माथे पर बल से जाए इसके तुम लफ्ज़ को पकड़ा। मेरा मतलब आपकी मदद के लिए। बालों में हाथ फेरे वो खसियाना सा मुस्कुराया। लेकिन मुझे ये क्यों लग रहा है कि आपने मेरा बैग जानबूझ कर गिराया है? मैंने उसने दोनों हाथ अपनी जानिब मोड़े हैरानी से कहा। जी आपने? सुंदरी ने दास पे। भला मैं आपका बैग कंधे से उतार कर कैसे गिरा सकती हूँ? बासित मासूमियत से बोला। सुंदरी ने उसे घूरा और दोबारा बैग उठाने के लिए झुकी। बासित के लबों पर मुस्कुराहट खिली थी। ये कैसे टूट गया? बल्कि टूटा नहीं, किसी ने काटा है। ये आप ही ने मेरा बैग खराब किया है। तीखे चितून लिए वो बैग का स्ट्रिप देखे बोली, जबकि बासित ने हाथ खड़े किए। मैं कैसे कर सकता हूँ? बासित भरपूर इंजान भरा। झूठ मत बोले मिस्टर, वो स्पार्ट अंदाज में बोली। तुम उस दिन वाली लड़की ही हो ना? अपना हाथ उसके चेहरे की जाने बढ़ाते बोला तो सुंदरी चंद कदम पीछे खिसकी। खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। उंगली उठाए उसने वार्न किया, जबकि बासित उसकी मासूम सी दिलेरी मुस्कुरा दिया। नडरपन का अच्छा तासुर पेश कर रही हो, लेकिन चेहरे के उड़ते रंग कुछ और ही जता रहे। बासित की जुमेली मुस्कुराहट और पुरतेश निगाहों को उसने नागवारियत से देखा। ऐसे मत देखो, अगर हार्ट अटैक आ गया तो सारा कसूर तुम्हारी इन मखमूर आंखों का होगा, और मरते मरते इल्ज़ाम आयद करके जाऊंगा कि एक लड़की ने ऐसे मुझे देखा कि हार्ट अटैक आ गया। हल्की सी गर्दन तिरछी की उसने आंख दबाई। हाउ चीप मैन, उसने बेजारी से कमेंट पास किया। क्या बोली तुम? बासित ने ब्रुझ गए। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है जो मैं आपको देखूंगी, जाए अपना काम करें। वो अंदर की तरफ बढ़ी। जब बासत ने उसका बैग देखा जो वो हाथ में पकड़ चुकी थी, न जाने क्यों उसे अपनी हरकत पर अफसोस के साथ साथ हंसी भी आई। सुनो, बासत ने फिर से पुकारा। सुंदरी ने तिरछी निगाह से उसे देखा, कोई जिताया हुआ कि अब क्या कहना चाहते हो? इधर ही रहता हूँ, बल्कि रहता नहीं था, अब रहूँगा सिर्फ तुम्हारी खातिर। बालों को सेट करके उसने अंगश से उसकी जानिब की।
بڑا آیا شاہ رخ خان اور ناک سے کوڑے بڑبڑائے تھی۔ شاہ رخ خان نہیں لیکن باسط خان ضرور ہوں، لب دبائے اس نے آگے آئے کہا، جبکہ سندری کا رنگ یکلخت فک ہوا۔ اس نے اس نبے سے مڑ کر سامنے موجود شخص کو دیکھا جو ابھی مسکرا تھا۔ سندری کے ماتھے پر پسینہ چمکا، جھٹ سے اس نے دروازہ بند کیا جو آج بھی اس کے منہ پر لگتے ہوئے بامشکل بچا تھا۔ باسط کو نہ جانے کیوں اسے دروازہ بند کرنے کی ادا نہایت بکواس لگی تھی۔ عنقریب اس کی یہ حرکت ہر حال میں بدلنے کی ٹھان لی تھی۔ تعبیر میں آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو یا نہیں، وحاج نے سرد لہجے میں پوچھا۔ امی بیمار ہیں وحاج بھائی، آپ جانتے ہیں بابا کا رویہ، پھر بھی آپ مجھے لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائے، میں اف بھی نہیں کہوں گی۔ یہی ایک وجہ مجھے روک دیتی ہے، ورنہ میں کب سے تمہیں یہاں سے لے جاتا، لیکن اب پاپا نے ہر بات کر دی۔ وہ پیشانی مسئلے بولا، جبکہ چہرہ اس وقت شدید سرخ ہو رہا تھا۔ سلمان بھائی سے میں نے نکاح کی حامی بھری تھی، تعبیر بمشکل بولی۔ تعبیر وہ صدمے سے یہی کہہ پایا، بھائی مجھے بابا کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی میری شادی کا سوچا تھا۔ تم اگر بابا کی طرفداری کر کے خود پر الزام لے رہی ہو تو یہ سمجھ لو کہ مجھے تمہاری بات پر ذرا بھی یقین نہیں ہے۔ ایک بار یقین کر لے اور جو ہو رہا ہے وہ ہونے دے۔ تعبیر بھی جیسے حالات سے ہار چکی تھی، وہ باپ بیٹا کے مقابلے آنے سے ڈرتی تھی، اور آج وہی ہوا تھا۔ کس سے نکاح کرو گی جس کے ہوش میں آنے کے چانسز صرف 20% ہے؟ وہ استضاعیہ گویا، جبکہ تعبیر کا رنگ پھک ہوا، اسے نہ جانے کیوں نوفل یاد آئے جس کی دھمکی سچ ثابت ہوئی تھی۔ اس نے وحاج کو دیکھا، دونوں کے چہرے پر ایک جیسے تاثرات تھے، لیکن دونوں ہی کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ میں یہاں سے جا تو رہا ہوں تعبیر، لیکن اگر مجھے ذرا بھی خبر ہوئی کہ تم یہاں تکلیف میں ہو تو میں اس دن اس حویلی سے تمہیں لے جاؤں گا، پھر مجھے کوئی وعدہ کوئی قسم نہیں روکے گی۔ وہ باور کراتا تعبیر کے سر پر ہاتھ رکھے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ باسو مینشن میں داخل ہوتے نوفل یزدان کو پکارے اوپر بڑھا۔ ہائے روز، کیسی ہو تم؟ کب آئی؟ وہ روز کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ نوفل سر نے صبح ہی کال کی تھی، آپ کیسے ہیں؟ وہ انگریزی لب و لہجے میں بولتی باسط کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ باس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ رازداری سے روز کے قریب جھکے بولا۔ باسط بیٹا اوپر آ کر مجھ سے پوچھ لو، میں ذرا تسلی سے جواب دے سکوں گا۔ روز کو کیوں زحمت دے رہے ہو؟ ریلنگ پہ دونوں ہاتھ رکھے وہ بھاری آواز میں بولا۔ باسط نے اوپر کی جانب دیکھا، سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ کافی ہُبرو لگ رہا تھا۔ براؤن گولڈن تاروں والے بال اوپر کی جانب سیٹ تھے۔ باسط نے دل ہی دل میں نوفل کی نظر اتاری، جو آج کافی دن بعد فریش سا لگ رہا تھا، ورنہ وہ ہر کام کی وجہ سے اپنا حلیہ بگاڑ کر رکھتا تھا۔ باقی معائنہ اوپر آ کے کرو، روز سوپ ریڈی کرو اور باسط کے لیے ملازموں کو کھانے کا کہو، نوفل کہتے ہی اندر کی جانب بڑھا، جبکہ باسط روز کو دیکھے اس کے پیچھے بڑھا۔ خیریت باس، ابھی کل تک تو آپ کا کوئی پلان نہیں تھا، اور پھر آپ اتنی جلدی شفٹ کیسے ہو گئے؟ یاری نبھانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، جا کر دوسرے کمرے میں دیکھو، تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ باسط ناقابل فہم تاثرات سے جائے نوفل کو دیکھتا دوسرے کمرے میں بڑھا۔ وہ سانس لے کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں وہ لڑکی اب بھی گہری نیند میں تھی، ہاتھ پر کینولا لگا تھا جو جتا رہا تھا کہ وہ سخت بیمار ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا چہرہ دیکھا، لیکن چہرہ دیکھتی اس کی آنکھیں پھیلی، جبڑے بیچ لیے، جبکہ کچھ سالوں پہلے والی اذیت شدت سے تازہ ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ مٹھیوں پیچھے دوبارہ نوفل کے روم کی طرف بڑھا۔ باس، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ بدقت اپنے تیش پر قابو رکھ پایا تھا۔ وہ تمہاری ماموں ذات تھی، لیکن اب وہ زین چودھری کی بیوی ہے۔ زین چودھری کی بیوی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں یہی سچ ہے، کچھ وجوہات کی وجہ سے اچانک نکاح ہوا تھا تو سفیر خان نے اسے بھی نہیں بچایا ہوگا، وہ تلخی سے بولا۔ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، نوفل نے اسے گھورا۔ باس، میرا آپ کے علاوہ اس دنیا میں کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، آج کے بعد یہ مت کہیے گا۔ لہو چھلکاتے چہرے سے وہ بمشکل اپنے تیش پر قابو رکھ پا رہا تھا۔ مانا کہ تم عمر میں مجھ سے بڑے ہو، پر چھوٹوں کی التجا کو ماننا تم پر فرض ہے۔ باس، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، وہ نظر چکا کر بمشکل بول پایا۔ ایک طویل عرصے کے بعد آج پھر وجود میں وہی اذیت محسوس کر رہا تھا جو اس نے بھگتی تھی، جو تکلیف، جو درد، جو رسوائی اس نے بے گناہ ہوتے ہوئے برداشت کی تھی۔ میں جانتا ہوں تم تکلیف میں ہو، لیکن بعض اوقات ہمیں اپنی تکلیف کو چھپا کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے اس مدد کے بدلے وہ اوپر بیٹھا رب ہماری اذیتوں کو راحتوں میں بدل دے۔ نوفل قریب آئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے حوصلہ آمیز انداز میں گویا ہوا۔ باسط نے سرخ ہوتی آنکھوں سے نوفل یزدان کو دیکھا، جو اپنی تکلیف بھی شاید چھپائے ہوئے تھا۔ بعض کچھ اذیتیں اول روز کی طرح دل اور روح کو تکلیف دیتی ہیں، لیکن خیر چھوڑیں، اپنی وجہ سے آپ کو دوبارہ اس غم میں جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ بس اسے دیکھ کر غصہ آ گیا۔ اس کا خیال رکھنے کے لیے تمہیں مینشن بلایا ہے، نہ کہ تم اس کے ساتھ برا رویہ رکھو، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ باسط بیٹا، نوفل نے انگلی اٹھائی، تنبیہ کی۔
बस बेटा ना कहा करे, मुझे अपना अब बच्चे जैसा लगता है। वो मुंह फैलाए बोला, वजह सिर्फ वो नौफल का ध्यान बटाना चाहता था ताकि वो इन लम्हों में ना चला जाए। इस वक्त तुम मुझसे भी छोटे लग रहे हो। बासित महज आंखें घुमा कर रह गया। बस सफ़ीर खान से पूछ लेना था कहीं बाद में एक और इल्ज़ाम मुझ पर आयद ना हो जाए और मैं दोबारा जलील और रुस्वा ना हो जाऊँ। वो तल्खी से बोला, जबकि दिल में इस लड़की को देखने का ख्याल फिर से सर उठा गया। जाओ देख लो, अंदर से तुम्हारा दिल बेचैन हो रहा है। नौफल उसकी कैफियत समझ चुका था। फिलहाल मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ, कल तक वापस आ जाऊँगा। वह नजर चराते बाहर की जाने पड़ा जब नौफल की आवाज़ ने कदमों को रोक दिया। खुद को अगर लायानी सोचों में उलझाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नौफल ने खुले लफ्ज़ों में धमकी दी। बासित महज सर हिलाए बाहर निकल गया, जबकि अंदर से दिल इस छोटी सी गुड़िया को देखने को मच रहा था जिसे उसने बचपन में गोद में खिलाया था। नौफल ने इसकी जाते ही आंखें मीच कर खोली, जो लाल डोरों से पुर थी, और वो दीवार के करीब आए। दीवार के एक जानिब लगे छोटे से बॉक्स, जो देखने एक मिनी हाउस लगता था, जिसका दरवाज़ा खुलता था। उसने मिनी हाउस का दरवाज़ा खोला और इससे एक जानिब मौजूद बटन को दबाया। दीवार का आधा हिस्सा सिरक गया था। वॉलपेपर के डिज़ाइन की वजह से वो दीवार भी आम दीवार जैसी ही लगती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ कोई खुफिया कमरा भी है। वो अंदर दाखिल हो चुका था। कमरे में फैली मध्यम रोशनियों ने एक दीवार पर पूरी तरह अपनी रोशनी फैलाई हुई थी। वहाँ मौजूद इस दुश्मन जहाँ की लातदार तस्वीर थी। वो भारी बोझल कदम लेता इसकी तरफ आया और एक बड़े साइज़ की तस्वीर को अपने मजबूत पोरों से छुआ। दिल में जैसे अगन जली थी। न जाने कब आप अपनी ज़िद छोड़कर नौफल यज़दान का दर्द कम करने की वजह बनेंगी और कब आपको पाकर रब का शुक्रगुज़ार बनूँगा। न जाने वो कौन सा लम्हा होगा जब मैं पूरे इस्तेहाक से आपका हाथ थाम कर इसके सामने सुरखरू हो जाऊँगा जिससे मैंने वादा किया था। काश एक बार तो आपके दिल में मेरी तड़प की सुलगन पहुँचे। आप भी नौफल यज़दान के लिए कुछ अलग महसूस करें। लातदार सवाल थे जो जहन में कलबला रहे थे, लेकिन इस वक्त वो हर तरह से खुद को अजियत में गिरा हुआ महसूस कर रहा था। राना शाकर के वालिद का दोबारा फ़ोन तो नहीं आया। वो इंस्पेक्टर जावेद से अपडेट लेता अपनी कुर्सी संभाले बैठा। नहीं सर, इनका फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन आपके लिए एक गिफ्ट कल भी आया था और आज भी फूल और एक बॉक्स आया। इंस्पेक्टर के जवाब पर उसने माथे पर बल नुमाया कि उसे देखा। वो सर किसी ने नहीं खोले थे, बस कबर्ड में रखवा दिए थे। इंस्पेक्टर जावेद घबराया था। पुलिस स्टेशन में सभी वहाँ सुल्तान की सख्त गिरतबियत से घबराते थे। उसका रोब इस नडर अंदाज दुश्मनों के लिए वो खौफ की निशानी समझा जाता था। एक बार तो मुकाबिल शख्स से बात करने के लिए ज़रूर झिझक महसूस करता था। लाकर यहाँ रखो और जाओ यहाँ से, और थोड़ी अकल भी इस्तेमाल कर सकते थे। पुलिस वालों से किसी इतनी मोहब्बत होगी कि वो तोहफे तहफ़े भेजने लगे। दुश्मनों की साजिश भी हो सकती है। सर, आज के बाद ख्याल रखूँगा। वो तेज़ी से बाहर निकला। मुबादा वो मज़ीद क्लास ना ले। कुछ देर बाद वो बुके और दो ही बॉक्स उठाए अंदर आया। एक बुके मुरझा चुका था जबकि एक ताज़ा था। दोनों बुकों में सफ़ेद फूल थे। इंस्पेक्टर को उंगली के इशारे से बाहर जाने का कहकर वो फूल पकड़ चुका था। उसने यह अलग बुके को उलट कर झाड़ा के सारे फूल फ्रेश फर्श पर बिखर गए। अंदर से एक छोटा सा कार्ड भी निकल के गिरा। वहाज ने झुक कर वो उठाया और दूसरे बुके के साथ भी यही अमल दोहराया। इसमें भी कार्ड निकला था। कार्ड उसने टेबल पर रखकर गिफ्ट बॉक्स पूरी तरह उधेड़े। भेजने वाला अगर अपने तहफ़ की बेकदरी देख लेता तो शायद रो ही देता। मुजरिमों से बढ़कर उसने गिफ्ट के साथ बुरा सलूक किया था। एक बॉक्स खोला तो इसमें से क्रिस्टल मचलना निकला था। फहाज के माथे पर बल नुमाया हुए। दूसरा बॉक्स उसने खोलने की जहमत नहीं की, क्योंकि जान चुका था कि इसमें भी यही घटिया सामान होगा। उसने कार्ड उठाकर देखा तो उसमें लिखी तहरीर पर मजीद खून खोला। पहले प्यार का पहला गिफ्ट फ्रॉम अनाबिया फरमान अली लिखा हुआ था। अनाबिया फरमान अली। वो पुरसोच हुआ कि आखिर ये कौन है। जहन पर जोर दिया तो याद आता चला गया। वाहिद ने कार्ड को हाथ में पकड़कर बुरी तरह कुचल दिया। दूसरे कार्ड के टुकड़े करके उसने पाँव के नीचे मसे। शक्ल से मासूम नजर आने वाली लड़की हद दर्जा चालाक निकली थी। उसकी इज्जत का ख्याल किए बिना फूल और गिफ्ट भेज चुकी थी। वाहियात लड़की। जेरे लबड़ बड़ाई उसने एक खिताब से नवाजा। जावेद अंदर आओ, बुलंद आवाज में धाड़ा। जावेद हड़बड़ाता हुआ अंदर आए। सारे फूल पैकेट में डालो और ये बॉक्स भी। इंस्पेक्टर जावेद ने हैरत से फूलों की बिगड़ी हालत देखी और फिर क्रिस्टल मचलना बाल देख के वो समझ गया कि किसी लड़की की हरकत है। जल्दी डालो और गाड़ी में लाओ। वह की रगें तन चुकी थी। उसे लड़कियों की इन्हीं वाहियात हरकत से नफरत थी और आज वो इस लड़की को पूरा सबक सिखाने का इरादा कर चुका था। आज अगर वो उसे ना रोकता तो शायद वो इसकी इज्जत नीलाम करने में वक्त न लगाती। फरमान अली साहब घर पर है? एसपी वहाज की साहिराना शख्सियत से गार्ड भी काफ़ी मरूब हुआ था। सर, वो तो नहीं है, छोटी बीबी है। गार्ड वहाज सुल्तान के तासुरात देखकर बुखलाए, जिसके चेहरे पर करखती फैली हुई थी। पैकेट थामे वो अंदर दाखिल हुआ। पथरीली रवा से गुजरता वो अंदर दाखिल हुआ।
मुलाजमीन इस वक्त सफाई में मगन थे। एक पुलिस वाले को देखकर सबका रंग फक हुआ। अपनी बीवी को बुलाओ, ड्राइंग रूम में उसका इंतजार कर रहा हूँ। 2 मिनट में अगर वो यहाँ ना आई तो मैं उसके कमरे में चला जाऊँगा। जी मैं बुलाती हूँ। मुलाजमा ऊपर भागी थी। वहाज पैकेट थामे अंदर ड्राइंग रूम में आया। मुलाजमा नाक करती नाबिया के कमरे में दाखिल हुई, जहाँ वो घरेलू होलिये में बेड पर कसमंदी से लेटी मूवी देख रही थी। बीबी जी नीचे। एक पुलिस वाला आया। वो कह रहा है कि बीबी जी को बुलाओ। बड़ी बीबी नहीं है तो आप इनकी बात सुन ले। वो बहुत गुस्से में। उन्होंने धमकी दी कि अगर बीबी जी 2 मिनट में ना आई तो वो ऊपर आ जाएंगे। मुलाजमा ने एक सांस में सारा हवा सुनाया। नाबिया के माथे के बल कम होते चले गए, जो मुलाजमा के अंदर आने की वजह से पड़े थे। पुलिस वाला वो बड़बड़ाए। एसपी वहाज। उसने तस्दीक की, जबकि दिमाग पर बेयकीनी छाई थी। पता नहीं जी, पर वो काफ़ी प्यारे हैं। मगर चेहरे पर बहुत गुस्सा था। मुलाजमा के मुंह से शख्स की तारीफ पर दिल की कली खुली। एसपी वहाज सुल्तान ही होंगे, इनसे बढ़कर हैंडसम हो सकता है कोई? वो मुस्कुराते हुए ठीक के जैसे बाहर का समा बंदा था। उदास तबीयत में किसी ने ताजगी सी भरती थी। तुम अच्छी सी चाय बनाओ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। दिल की बेकाबू हालत पर मुश्किल संभालिए वो खड़ी हुई। ब्लैक ड्रेस लेकर वो चेंज करने भागी। मुलाजमा भी नाबिया के मूड बदलने पे हैरान हुई। लड़की कभी किसी से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करती थी। आज इसका अंदाज ही पल में बदल गया था। जल्दी से आईने के आगे खड़े होकर उसने बाल दोनों कंधों पर फैलाए। ब्लैक लिबास, जिसका गला उसने पीछे से डी परवाया था, आज पहनने का मौका मिला का उसे पता नहीं था। वो ज़्यादातर वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी, लेकिन वो आज की खातिर वो शर्की लिबास पहन चुकी थी। लबर पर गहरे रंग की लिपस्टिक लगाती वो नीचे भागी। रेशमी बाल उड़ते बिखरते उसके गुलाबी गालों को छू रहे थे। दिल पागीपना दीदार के लिए पागल हो रहा था। ड्राइंग रूम के करीब आकर उसने गहरा सांस लिया और शिद्दत से धड़कते दिल पर काबू पाए वो अंदर दाखिल हुई। वहाँ जो चेहरे पर क्रोफर से जाए बैठा, सामने खड़ी हुस्न की मिसाल बनी अप्सरा को देखे साकत हुआ। आप यहाँ? अनाबिया ने कांपते वजूद पर काबू पाए पर मुश्किल सवाल किया। सदा की बोल्ड नदर लड़की आज इस शख्स के सामने भरपूर मशर की लड़की लग रही थी। वहाज ने सर झटक कर इसके शहर से खुद को आज़ाद किया। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। वो संजीदगी भरे सत लहजे में बोला। मैं समझी नहीं। अनाबिया सहज सज कर कदम लेते आगे आई। वहाज ने पैकेट सेंटर टेबल पर फेंका, जिसमें मुरझाए हुए बिखरे हुए फूल थे। दूसरा शापर भी उसने सामने किया। अनाबिया हैरान हुई थी। ये सब क्या है? वो बड़बड़ाई। ये सब वही है जो आपने इन 2 दिनों में भेजकर मेरी इज्जत का तमाशा बनाया है। मैंने? अनाबिया हैरान हुई। जी आपने। दांत वहाज दांत पीसे गुराया। लेकिन मैं कैसे? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। मिस अनाबिया फरमान अली, इतनी अनजान मत बने। आप सब जानती हैं मेरे ऑफिस मुझे फूल भेजकर आप साबित क्या करना चाहती हैं। वहाज को इसकी अनजान पर मजीद कोफ्त हुई। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? नाबिया के चेहरे पर नाकाबिले फहम तासरात सजे थे। ये आप खुद बेहतर जानती हैं कि आप ऐसा क्यों करेंगी। लेकिन आज के बाद ये हरकत हरगिज़ मत कीजिएगा। पुलिस ऑफिसर्स के एहसास से आरी रवैये और इनकी सज़ाओं को तो आप जानती ही होंगे। मुजरमों के लिए तो वो वैसे भी मौत की अलामत समझे जाते हैं। वहाज वाज़ी धमकी देता नाबिया के चेहरे पर तासुब भरी निगाह डाले बाहर निकला, जब उसकी आवाज़ ने कदम रोकने पर मजबूर किया। मैं नहीं जानती ये फूल गिफ्ट्स किसने भेजे हैं, लेकिन ये याद रखें कि मैं अगर ऐसी हरकत करूँगी तो पुरएतमादी से करूँगी, और फिर मुझे पुलिस ऑफिसर्स के सख्त की रवैये की भी परवाह नहीं होगी। वो बिना मोड़े बोली थी। वहाज ने उसकी पुश्त को देखा। यखलक उसने निगाह बदली। गहरे गले से उसकी सफ़ेद पुश्त नुमायाँ हो रही थी, और एक नागवारी जिसे वहाज अली के वजूद में उतरी। किसी की घटिया हरकत पूरी शिद्दत से याद आई थी। वो गिफ्ट उठाकर मूर्ति वहाज की जानिब आई। ये अपने साथ ले जाइए, क्योंकि अनाबिया फरमान अली किसी दूसरे की चीज़ें अपने पास रखने की हरगिज़ कायल नहीं है, और एक ऑफिसर होने के नाते आपको इस बारे में तफ्तीश भी करनी चाहिए। नाबिया ने सामान उसकी जानिब बढ़ाया। वहाज ने हाथ बढ़ाकर वो सामान लिया तो नाबिया ने इसकी आंखों में देखा, जिसमें लाल डोरे थे, जबकि वहाज की निगाह बिन मखमूर नैनों में उलझी थी, जिनमें कोई भी फरेब नहीं था। नाबिया का दिल शिद्दत से धड़का। मजीद इन आंखों में देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। पल भर में उसने सामान ज़मीन पोस किया। नाबिया चंद कदम पीछे हुई। सच शुक्र था कि फर्श पर दबीज़ कालीन था, वरना क्रिस्टल बाल चकनाचूर हो जाता। मैं तफ्तीश ज़रा अपने अंदाज में करता हूँ। कार्ड पर आपका नाम लिखा था, इसीलिए चीज़ें यहीं फेंक कर जा रहा हूँ। मुलाजमा की मदद से बाहर फेंक देना। एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा करते उसने क्रिस्टल बॉक्स पर अपना भारी बूट रखा और दोबारा उसकी आंखों में झांका, जहाँ अब यासियत थी। फिज़ा में कांच को चलने की आवाज़ गूंजी। अनाबिया की आंखें भीगी। उसे वहाँ से इस हद तक दिल बर्दाश्त रवैये की उम्मीद ना थी। वो शख्स हर दर्जा संग दिल और कठोर साबित हुआ था। और हाँ, आज तो मैंने सिर्फ आपको वार्निंग देकर आइंदा ये हरकत हुई तो मैं सब कुछ आपके बाप को पहुंचाऊंगा। सो बी केयरफुल। वो जाते जाते भी धमकी देना नहीं भूला था। अनाबिया सुनसी खड़ी रह गई। मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। जैन चौधरी का ये मैसेज अब तक तकरीबन
वो रट चुका था। एक बार इसी मैसेज को पढ़कर उसने ज़ेरे लब उसे कई गालियों से नवाजा। तेरी बीवी मेरी भी कुछ लगती है। नौफल के मैसेज पर ज़ैन को तसल्ली हुई थी, क्योंकि नौफल जिसदान भी अपनी मर्ज़ी का मालिक था। खूब तरसा कर उसने मैसेज का जवाब दिया। वो तेरी बेटियों जैसी है, ज़ैन ने उसे चढ़ाया। साले तू मुझसे बड़ा है और वो लड़की मुझसे 5-6 साल ही छोटी होगी, पर तेरे से वो कम से कम 10-12 साल छोटी है और तू उसे मेरी बेटी बना रहा है। इतनी भी छोटी नहीं, और अगर है भी तो बीवियाँ छोटी ही अच्छी लगती हैं। ताने मत देना, जानता हूँ मैं बड़ी लड़की को पसंद करता है, तभी मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है। नौफल के गुस्सीले इमोजी भेजे। उसके खाने का ख़ास ख्याल रखना। चंद देर मेरे पास ही रही थी और चंद दिन में ही मैं समझ गया था कि वो खाने पीने में लापरवाही बरतती है। जैन के मैसेज वो मुस्कुराया। मतलब मोहब्बत की चिंगारी जली हुई है। नौफल ज़ेरे लब बड़बड़ाया। फ़िक्र मत करो, मेरी ख़ास असिस्टेंट रोज़ 24 घंटे इसके साथ है। थैंक यू मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तेरा फ़र्ज़ है। ज़ैन ने ज़ुबान वाले इमोजी भेजे तो मुस्कुराया। कम अज़ कम ज़रफ़-ए-शाह महफूज़ थी, बेशक उससे दूर थी। वो उसे नहीं देख सकता था, लेकिन एक इत्मीनान था कि वो अब किसी नुकसान का हिस्सा नहीं बनेगी। मैं जान चुका हूँ ज़रफ़-ए-शाह कि तुम क्यों यहाँ से चली गई। तुमने शायद मेरी बातें सुन ली थी, और सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि तुम इन बातों पर यकीन भी कर गई। तुम तो मुझसे दूर जाने पर मर जाना चाहती थी, फिर ये सब क्यों किया? न जाने तुम्हारी वो बातें महज़ बातें थी, या फिर ये चंद दिन का साथ हम दोनों में एतबार ना ला सका। लेकिन ज़ैन चौधरी ने तुमसे निकाह किया है। बेशक तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो, और तुम पर तोहमत भी लगी है, और फिर ये तोहमत भी एक धोखा और फ़रेब है। क्योंकि अगर वो तोहमत सच होती तो रात के इस पहर तुम इसी के पास जाती जिसके साथ भाग रही थी। लेकिन तुमने शर के बजाय खैर की राह चुनी है। तुम इस गाँव से ही चलेगी, जो ये ज़ाहिर करता है कि तुम पाकीज़ा हो, और मुझे इस कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारे बारे में क्या कहता है। क्योंकि 2 दिन में तुम मुझ पर अपना अधूरा सा रंग पूरी तरह पक्का करके चढ़ा चुकी हो। इसलिए ये यकीन रखो कि ज़ैन चौधरी को अगर कभी मोहब्बत हुई तो वो सिर्फ तुमसे होगी, क्योंकि ज़ैन चौधरी ने खुद से अहद किया था कि वो उसी से मोहब्बत करेगा जो उसकी महरम होगी। उसकी झुमकियों को छूते हुए तसव्वुर में ज़ुल्फ़ शाह से मुखातिब हुआ। उसकी चैन को अपनी जेब में रख चुका था, और उसकी चूड़ियों को उसने ड्रेसेस में एक जानिब कांच के नफीस बॉक्स में तरतीब से रख दिया था। अपनी निगाह के सामने वो बॉक्स सजाया। गर्ज उसका अक्स देती हर चीज़ को कीमती मता की तरह संभाल चुका था। अगर आज ये लफ्ज़ सुंदरी सुन लेती तो शायद क़यामत बर्पा हो जाती और ज़ैन चौधरी को बर्बाद करने में हर हद पार कर जाती। और अगर यही लफ्ज़ ज़ुल्फ़िकार सुन लेती तो शायद वो खुशी से सारी हवेली को महका देती और ज़ैन की हिफाजत के लिए अपनी जान भी इस पर वार देती। लेकिन वो दोनों ही हकीकत से अनजान अपनी अपनी जंग लड़ रही थी। भाई वो बासित खान भाई वो वापस आ गया है। सुंदरी अब भी जैसे खौफ के ज़ेर असर थी। क्या मतलब? वो कैसे हो सकता है? उसे तो फांसी दी गई थी। शायान सागर के माथे पर यखलक पल नुमाया हुए, जबकि दिमाग में माजी में हुए हादसात एक बार फिर ताज़ा हुए। नहीं, वो जिंदा है। उस शख्स ने मुझे खुद अपना नाम बताया था। सुंदरी, दुनिया में हज़ारों बासित खान भी हैं। हज़ारों बासित खान हो सकता है वो कोई और हो। तुम परेशान मत हो, बल्कि मैंने तुम्हें एक और अहम खबर सुनाने के लिए फ़ोन किया था। भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे? वो बासित खान ही था। उसने आप ही को खामोश हो जाओ, इस बात का जिक्र मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा ना सुनूं, शाहजहां सागर ने स्पार्ट अंदाज में कहा। लेकिन वो मेरे फ्लैट के साथ वाले फ्लैट में रहता है और आप कह रहे हैं कि मैं जिक्र भी ना करूं। सुंदरी उसे ना चाहते हुए भी बता चुकी थी। तुम दोबारा इसका जिक्र हरगिज नहीं करोगी, वो हुक्मी अंदाज में गोया हुआ। जी भाई, वो बड़बड़ाई थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सुरफशान जैन चौधरी को छोड़कर भाग चुकी है और उसका फ़िलहाल कुछ पता नहीं जा रहा, और ये मेरे हक़ में अच्छा नहीं है। ज़री भाग गई, लेकिन कैसे? ज़ैन के घर से भागना इतना आसान तो नहीं है। हैरानगी उसके लबों से या थी। वो मैं नहीं जानता। ज़ैन चौधरी हवेली में आया था और पूरे गांव में उसने पूछताछ की है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। भाई, अब आप क्या चाहते हैं? वो ज़िद हुई। ज़ुल्फ़िकार की धोखेबाजी के बाद वो बिल्कुल भी इसका जिक्र नहीं सुनना चाहती थी। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे ज़ुल्फ़िकार हर हाल में चाहिए, और ये तुम भी जानती हो कि मैं क्यों ये चाहता हूँ। भाई, अब मैं मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बन सकती। आपको अपना काम खुद करना होगा। अगर वो धोखेबाज लड़की मेरे सामने आई तो मैं उसका कत्ल कर दूँगी। ज़ुल्फ़िकार का ज़िक्र ही उसे मज़ीद इससे मुतनफ़्फ़र कर चुका था। यही मैं चाहता हूँ कि तुम इसका कत्ल कर दो। शायान सागर सफ़ाक़त की इंतहा किए बोला। भाई, आप सुंदरी को यकीन नहीं आया कि उसका भाई कह रहा है। मज़ाक कर रहा था। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कैफ़ियत। भाई, आज के बाद ऐसे मज़ाक मत कीजिएगा। उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। जबकि शायान सागर बासित का ज़िक्र सुनता उलझ कर रह गया। इतने सालों बाद उसके ज़िंदा होने की खबर ये कोई आम बात नहीं थी। ज़ुल्फ़िकार को कुछ दिन भूलकर उसे अब बासित खान के बारे में सोचना था। नींद से बेदार हुए इसने इर्द गिर्द देखा। ऐसा लगा जैसे लंबी मुसाफिर तय की उठी हो। इसने इर्द गिर्द शानदार कमरे में देखा तो हवास बाख्ता हुई।
यकदम ये गुमान हुआ कि दोबारा जैन चौधरी के कमरे में है। जल्दबाजी से उठने के बायस वो लड़खड़ाई थी। इसी लम्हे रोज़ अंतर दाखिल हुई, जिसके हाथ में नाश्ते से पड़ी ट्रे थी। उसने क्राउन का सहारा लिए सामने देखा जहाँ रोज़ खड़ी थी। आप कौन और मैं यहाँ कैसे? इतनी देखती वो खौफ के ज़ेर असर थी। दिल में यही ख्यालात गर्दिश कर रहे थे, कहीं वो दोबारा इस सितमगर की कैद में तो नहीं चलेगी। लेकिन सामने मौजूद लड़की के नकूश और हुलिये से काफ़ी मुख्तलिफ ज़ाहिर कर रहे थे। एहसास भी मन में हुआ कि वो शख्स वहाँ नहीं था। डोंट बी पैनिक कर, मैं रोज़ हूँ। रोज़ ने अपनी मखसूस लबो लहजे में कहा। मैं यहाँ कैसे आई? तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, उसने बरक्स जवाब दिया। ज़ुल्फ़िकार को मज़ीद खौफ ने घेरा। यूँ लगा जैसे वो एक मुसीबत से निकल कर दूसरी में फंस गई हो। मामा मुझे जाने तो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम डर क्यों रही हो? जैसे तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। रोज़ आगे आई थी। मुझे यहाँ कौन लाए? ज़ुल्फ़िकार ने भी इसका अंदाज़ अपनाया। चेहरे पर अब भी खौफ था, जबकि रोज़ ने हैरानगी से इस हसीन लड़की को देखा, जिसका हुलिया उसे पढ़ा लिखा बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से वो काफ़ी असीर कर रही थी। रोज़ ने ऊपर से नीचे तक नीवा लबों से उसे एक बार फिर देखा। ज़ुल्फ़िकार उसकी निगाह का महफूज समझ चुकी थी। वो नज़र चुरा कर रहेगी। तुम बास को मेन रोड पर बेहोश मिली थी तो वो तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। रोज़ ने नरम मुस्कुराहट से जाए ज़ुल्फ़िकार को देखा। कोई अतासर देना चाहती हो कि वो इससे मत डरे। बॉस? ज़ुल्फ़िकार हैरान हुई। यस बॉस, वो शाम को आएंगे। फ़िलहाल तुम आज़ादी से घूम सकती है। ऐसा समझो तुम्हारा अपना ही घर है। रोज़ ने नाश्ते की ट्रे उसके सामने रखी। आओ मैं तुम्हारा फेस वॉश करवा दूँ। रोज़ ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा था। डरो नहीं, हर इंसान बुरा नहीं होता। रोज़ ने गोया उसे जताया था। ज़ुल्फ़िकार को भी इस वक्त सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए चुपचाप उसके साथ आगे बढ़ी थी। गाड़ी ड्राइव करता हुआ माथे पर बस से सामने देख रहा था, जबकि ज़हन में मुख्तलिफ सोचें थीं। अनाबी की भीगी आंखों ने जैसे उसी बुरी तरह जकड़ा था। इन स्याह नैनों में न जाने क्या था जो वो भूल नहीं पा रहा था। उसने ज़िद छोड़कर सिगरेट सुलगाई ताकि अपने ध्यान बटा सके। लेकिन अनाबी फरमान अली कोई आम शख्सियत नहीं थी, जैसे वो भूलना चाहता था और भूल जाता। न जाने क्यों वहाज के दिल ने गवाही दी कि वो आम लड़की हरगिज़ नहीं हो सकती। वैसा रवैया हरगिज़ नहीं अपनाना चाहता था, लेकिन वह लड़की काफ़ी दलेरी से झूठ बोल रही थी। पर उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या? वो यकलक वो थमा और उसने गाड़ी रोकी। सनम, एक नाम ज़हन में आते ही उसने स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। वो कैसे भूल गया था कि वो चिटांग पर की लड़की किस कदर चालाक है, जिसने वहाँ भी उसकी ज़िंदगी जीरन करके रखती थी, अब यहाँ भी उसे बर्बाद करने आ चुकी है। नहीं सनामा, मैं हरगिज़ ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम मुझे बर्बाद करना चाहोगी और मैं हो जाऊंगा? नामुमकिन। अब वहाँ सुल्तान अपनी सारी कश्तियाँ चलाकर अपनी मंजिल के करीब आया। अब अगर तुम मुझे बर्बाद करना चाहोगी तो मुंह के बल ही गिरोगी। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। मोबाइल पर होती बिप ने उसकी तवज्जो खींची। अननोन नंबर देखकर उसने मैसेज ओपन किया। मैसेज देखते इसके माथे पर बल नुमाया हुए थे। साले साहब, हमें आशिकी से रोकते रोकते आप खुद इश्क व आशिकी में पड़ गए। वैसे लड़की काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारी बहन से बहुत कम। क्या ख्याल है दोनों मिलकर एक ही दिन नकाना कर लें? तुम भी खुश, मैं भी खुश। उसने मोबाइल को सख्ती से हाथ में जकड़ा। फिलहाल तो मैं तुम्हें दोबारा जेल भेजने का इंतज़ाम करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे सारे काले करतूतों की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। उसे मुंह तोड़ जवाब दिए, मोबाइल ही ऑफ कर गया था।